محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ اتحاد کے 75 برسوں کے جشن کا بانکڑا میں شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواسریڈی کی قیادت میں ریالی اور جلسے عام کا انعقاد۔ مجھے کوئی ای ڈی نوٹس نہیں آئی، دہلی کے چند قائدین میڈیا کو کر رہے گمراہ۔ متحدہ ضلع میں سی کے کویتا کا صحافتی بیان۔ ہمیشہ متحد رہے اور ہمیشہ قوم کو متحرک کرے، ملک کی ترقی کے لیے متحد ہونا ضروری۔ کے سی آر کی قیادت میں ہی ملک کی ترقی ممکن۔ تلنگانہ اتحاد جشن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ جدید سیکریٹریٹ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نام سے منسوب کرنے پر رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی قیادت میں عوام کی جانب سے ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ عوام کو مذہب کے نام پر منتشر کرنا بی جے پی کا کام اور عوام کو متحد کرنا کے سی آر کا اسٹائل۔ تلنگانہ اتحاد کے 75 سالہ جشن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کا خطاب۔ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی قیادت میں تلنگانہ اتحاد جشن کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد اور ریالی کا عوام کی کثیر تعداد کے ساتھ انعقاد۔ عوام غفلت سے جاگے اور اپنے ووٹ کے حق کی حفاظت کریں، اپنے آدھار کو ووٹر آئی ڈی سے لنک کریں۔ جمعیت علماء ضلع صدر حافظ علی خان کی جانب سے 18 ستمبر کو شعور بیداری اجلاس کا انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ قومی یکجہتی تقاریب کے پیش نظر پہلے مرحلے کے طور پر منعقد ہونے والے تلنگانہ قومی یکجہتی ریالی میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے پر اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے کیا اظہار تشکر۔ تلنگانہ قومی یکجہتی تقاریب کے مدنظر شہر میں پہلے مرحلے کے طور پر منعقد ہونے والے تلنگانہ قومی یکجہتی ریالی میں اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے کلکٹر نارائن ریڈی، سٹی میئر نیتو کرن، کارپوریٹرز و دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ وجہ استوا تقاریب کے پیش نظر کلکٹر گراؤنڈ سے شروع ہونے والی بھاری ریالی کا شردھانند گنج تک انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 16، 17، 18 ستمبر کو منعقد ہونے والے تلنگانہ قومی یکجہتی پروگرام کے تعلق سے نکالی گئی بھاری ریالی میں طلباء و کسان عوام کے علاوہ دیگر شعبے سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے ریاست حکومت کے شہدائی ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ عوام غفلت سے جاگے اور اپنے ووٹ کے حق کی حفاظت کرے، اپنے آدھار کو ووٹر آئی ڈی سے لنک کرے۔ جمعیت علماء ضلع صدر حافظ علی خان کی جانب سے 18 ستمبر کو شعور بیداری اجلاس کا انعقاد۔ آج ضلع صدر جمعیت علماء نظام آباد حافظ علی خان کی جانب سے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آدھار کارڈ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ سے مربوط کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے، لیکن اس ضمن میں اقلیتی عوام میں شعور بیداری نہ ہونے کے سبب یہ خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں اقلیتی عوام انتخابات میں اپنے ووٹ کے حق سے محروم نہ ہو جائے، اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے چلائی جا رہی مہم سے بھی عوام ناواقف ہے، جس کے چلتے جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے
18 सितंबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पर एक शऊर बेदारी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा कराम शिरकत करेंगे और इस जलसे में रोजनामा सियासत के जिम्मेदार सोहेल आमिर साहब की भी शिरकत मुतवक्के है और इनकी जानिब से अवाम को काफ़ी मुफीद मशवरे भी दिए जाएंगे। इस ज़िमन में इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर आईडी इलेक्शन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क में जारी है और निज़ामाबाद में भी वो काम कलेक्ट्रेट की जानिब से उनकी जानिब से जो BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स जो डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं वो भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन उस काम में हमारी क्या कहेंगे बहुत ज़्यादा गफलत का मुजाहरा हो रहा है। जो BLO ख़वातीन घरों को जा रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, उसमें नामों का इंदराज नहीं किया जा रहा। इसलिए हम अपील करते हैं कि सब लोग जिनके घरों को भी आशा वर्कर्स और जो BLO आएंगे अपने नामों का इंदराज कराएं, वोटर लिस्ट को में नामों का इंदराज कराएं और आधार से लिंक कराएं। उसी के सिलसिले में हम लोग जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एक 18 सितंबर बाद नमाज इशा निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम इसी सिलसिले में रखा है, जिसमें निज़ामाबाद शहर में के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद और इसी तरह मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों को बुलाकर एक इजलास रखे हैं, जिसमें हैदराबाद के बल्कि दक्कन के मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया मोहतमीम जामिया इस्लामिया अशरफ उलूम हैदराबाद खिताब फरमाएंगे और इस उन्वान से जो हमारे अंदर गफलत बरती जा रही है, एक शऊर बेदारी और इस ताल्लुक़ से एक बेदारी की मुहिम का वो इजलास होगा। इसलिए मसाजिद की कमेटियों से, शहर के ज़िम्मेदारान से और उलमा से, हुफ़ाज़ से और जितने ज़िम्मेदार किस्म के अहबाब हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं 18 सितंबर को बाद नमाज इशा निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पहुँचकर इस इजलास में शरीक हों, इजलास को कामयाब बनाएं और इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए आप लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि शिरकत फरमाएँ 18 सितंबर को बाद नमाज इशा। और उसमें उसी तरह एक प्रोग्राम ये भी है कि उर्दू सहाफ़त में 75 साल से खिदमत हुई सियासत के एडिटर 75 साल से उनका डायमंड जुबली मना रहे हैं, तो उसमें उर्दू के जो सियासत के एडिटर इन चीफ जनाब आमिर अली ख़ान साहब है उनको भी मदऊ किया जा रहा है और वो भी उसमें बतौर मेहमान आएंगे। ED की नोटिस जारी किए जाने से मुतालिक मीडिया इत्तलात पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दहली शराब इस्काम मामले में नोटिस जारी किए जाने के बायस मीडिया और सोशल मीडिया में इत्तलात गश्त कर रही हैं। इन इत्तलात पर रुकन कौंसिल कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ट्विटर पर एक बयान पोस्ट करते हुए कविता ने वाज़े किया कि इन्हें किसी किस्म की नोटिस मौसूल नहीं हुई है। कविता ने कहा कि दिल्ली में बैठकर चंद अफराद मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि वो हक़ाइक़ पेश करने में ज्यादा वक्त दे ताकि टीवी के नाज़रीन का कीमती वक्त बचा जा सके। हज़रत मौलाना यूसुफ रज़ा अमजदी की क़ियादत में सूए हरमैन टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। उलमा कराम व सियासतदानों ने शिरकत करते हुए पेश की मुबारकबाद। शहर निज़ामाबाद के अवाम को हज व उम्रे की सादत, मुकम्मल फ़राइज़, वाजिब क़ीमत व सऊदी में मुकम्मल क़ियाम व बेहतरीन ताम के इंतज़ामात की फ़राहमी की ग़र्ज़ से शहर निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन मौलाना यूसुफ रज़ा अमजदी और मोहम्मद एजाज उमर खादरी की जानिब से शहर निज़ामाबाद के इलाके बोधन रोड नज़द मुलाकात होटल सूए हरमैन टूर्स एंड ट्रैवल का शानदार इफ्तिताह खतीब व इमाम मस्जिद चिश्तिया मुफ्ती अकबर साहब के हाथों अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ उलमा कराम व दानिश्वरों ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज, मीर इरशाद अली समीर, सैयद ज़कीउद्दीन व दीगर ने शिरकत करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। निर्मल के मसाजिद व कब्रिस्तानों के लिए 3.35 करोड़ की मंजूरी। अखलतों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी का तयक़ुन।
مستقل نرمل میں کافی عرصے سے نرمل کی مساجد و قبرستانوں کی مرمت کے کام انجام دیے گئے تھے۔ فنڈز کی تاخیر سے انتظامی کمیٹیوں کو کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے کافی کوشش کرتے ہوئے عرصے دراز سے رکی ہوئی رقم 3 کروڑ 35 لاکھ روپے منظور کروائے ہیں۔ مقامی مساجد کی کمیٹیوں کو اس بات کی اطلاع دی اور کہا کہ محکمہ فائنانس سے یہ رقم ضلع کلکٹر نرمل کو جاری کی گئی ہے۔ بہت جلد انجام دیے گئے کاموں کی رقم تمام انتظامی کمیٹیوں کے ذمہ داران کو حوالے کی جائے گی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی مقامی اقلیتی اراکین، بلدی اور ٹیارس قائدین کی بڑی تعداد اندرا کرن ریڈی کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ واضح رہے کہ ریاستی وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نرمل ضلع میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے زبردست خدمات انجام دیتے ہوئے اقلیتوں کے دل میں ایک مخصوص جگہ بنائی ہے۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر اقلیتوں کی جانب سے والہانہ محبت پر کہا کہ وہ ضلع نرمل کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے کی جا رہی اسکیمات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی مستحکم قیادت کے نتیجے میں ریاست تلنگانہ آج سنہرے تلنگانہ کی سمت گامزن ہے۔ اس ریاست میں ماضی کے حالات پر روشنی ڈالے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے اہم ضرورت برقی ہے، جس کو مکمل باقاعدہ بناتے ہوئے ٹیارس حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وظائف شادی مبارک اسکیم، معززین کو معاوضے کے علاوہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے تاریخ ساز کام انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ نرمل ضلع کو میڈیکل کالج کا قیام بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ نرمل میں اقلیتوں کے لیے ایک شاندار شادی خانے کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور ہو چکے ہیں، جس کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ آخر میں وزیر موصوف نے بتایا کہ وہ نرمل ضلع کو ایک مثالی ضلع بنانے کا عزم کر چکے ہیں اور اس ضلع کو مثالی ضلع بنانا میرا مقصد ہے۔ بودھن شہر میں تلنگانہ قومی یکجہتی تقریب کے مدنظر رکن اسمبلی شکیل عامر کی زیر نگرانی میں شکر نگر چوراستے سے جونیئر کالج تک بڑے پیمانے پر ریالی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی زیر نگرانی میں تلنگانہ قومی یکجہتی تقریب پر مبنی ریالی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں طلباء، کسان، افسر، ملازمین، سیاسی قائدین، کارکنان کے علاوہ ہر شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کرتے ہوئے نعرے لگائے، جس سے ہلچل نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ تلنگانہ کی سہولت کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی نہ صرف بصیرت بلکہ حکمت اور بہترین حکمرانی کی حامل قیادت کے زیر اثر اپنی معاشی استحکام کی جانب ترقی کی راہ پر بڑھ رہا ہے اور CM-KCR کے دور اقتدار میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کے تحت فیض یاب کرنے کا صحرا CM-KCR کی سر جانے کا اظہار کیا۔ ఒక దళిత బిడ్డని ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకోలే। ఈరోజు మళ్ళా స్వయాన ఉపాధి కింద డైరెక్ట్ ఖాతాలో డైరెక్ట్ డెబిట్ ఇన్ అకౌంట్ 10 లక్షల రూపాయలు బ్యాంక్ సంబంధం లేకుండా ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। చాలా మంది మాట్లాడిన దళితుల గురించి جکل حلقہ اسمبلی میں شاندار پیمانے پر منعقدہ تلنگانہ قومی یکجہتی ریالی میں مقامی رکن اسمبلی ہنمن شنڈے نے کی شرکت۔ ضلع کاماریڈی جکل رکن اسمبلی ہنمن شنڈے نے سہ روزہ منعقد ہونے والے تلنگانہ قومی یکجہتی تقریب کے پیش نظر پہلے مرحلے کے طور پر بجکندا منڈل کے مقام پر واقع ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کو پھول مالائیں پہناتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی تصویر کو دور سے نہلانے کے بعد تلنگانہ قومی یکجہتی ریالی کا افتتاح عمل میں لایا گیا، جس میں حلقہ اسمبلی کے علاوہ ہر منڈل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے TRS قائدین و کارکنان کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر جکل MLA ہنمن شنڈے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM-KCR کی کامیاب ترین قیادت میں ریاست کے عوام کے ساتھ ہونے والی تمام ناانصافیوں کو دور کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کے تحت فیض یاب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ترقی کے ساتھ عوامی بہبود کے بڑے پیمانے پر کام انجام دیے جا رہے ہیں، جس سے سماج کے ہر طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے
के गरीबों, खवातीन और तुलबा के लिए कई स्कीमात शुरू की गई। इन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ 24 घंटे तमाम जिमरों के सार्फिन को मियारी बरखे की सरबराही अमल में लाई जा रही है और समाज के हर तबके को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए सैकड़ों गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं, जिसमें लाखों तुलबा अंग्रेजी तालीम हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों अवाम की कैसी तादाद ने रैली में शिरकत की। నూతనంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి సెక్రటేరియట్కు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నామకరణం చేయడం నిజంగానే మనందరికీ సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. మొన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీలో ఢిల్లీలో నిర్మిస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ భవనానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం लोकेश्वर मंडल के मनमदा देहात में मुकामी रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। लोकेश्वर मंडल के मनमदा देहात में मुकामी रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने नौ तामीरशुदा सेक्रेटेरिएट को हिंदुस्तानी आयन के बीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला का फैसला पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। KCR ने इस मसले पर बहुत अच्छा फैसला लिया है। MLA विठल रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के रियासती असम्बली में मुनक़्क़िद करारदाद पास करने के फैसले का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात जिनमें आसरा पेंशन, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, CM रिलीफ फंड, 24 घंटे बिजली की फराहमी, दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की फराहमी के अलावा दीगर स्कीमों पर अमलावरी की जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ साबिक़ा ZP चेयरमैन श्याम सुंदर, MPP ललिता भुजना, TRS मंडल कन्वीनर श्याम सुंदर, PC चेयरमैन रत्नाकर, सोशल मीडिया सदर बंडी प्रशांत, सरपंच शेखर रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन निजामाबाद सेक्रेटरी कम सीनियर सिविल जज B पद्मावती ने निजामाबाद के धर्मराम B में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुला स्कूल व कॉलेज का अचानक तनख़ी अमल में लाई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन निजामाबाद सेक्रेटरी कम सीनियर सिविल जज P पद्मावती ने निजामाबाद के धर्मराम B में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुला स्कूल व कॉलेज का अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेते हुए दोपहर के औक़ात काल में तुलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा का मुआयना करने के अलावा स्कूल की हर कमरे जमात, स्टोर रूम, बाथरूम, किचन रूम का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए ज़ेर तालीम तुलबा से बातचीत करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से आगाही हासिल की। इस प्रोग्राम में DLSA सेक्रेटरी श्रीमती P पद्मावती, स्कूल के प्रिंसिपल B संगीता, असातिज़ा साहिबीन ने DLSA स्टाफ के अलावा शिरकत। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में मुनाक़िद होने वाली तेलंगाना कौमी यकजहती तक़ारीब के पेश नज़र पहले मरहले के तौर पर शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से बड़े पैमाने पर मुनाक़िदा कौमी परचम रैली में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में मुनाक़िद होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती तक़रीब के पेश नज़र शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से बड़े पैमाने पर मुनाक़िद होने वाली कौमी परचम रैली में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदी अमल में लाने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने के बायस रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है और रियासत तेलंगाना में मुक़ीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को खुशहाल रखना ही TRS हुकूमत का अव्वलीन मकसद होने का इजहार किया। సన్న బియ్యం గోడౌన్లని కాలైపోయిన నిజామాబాద్ బియ్యం లేకపోతే మంచిగా తెప్పిస్తున్నాం అంటున్నాను ఆయన. ఎవరు? బియ్యం సివిల్ సప్లై. దానికి కారణం ఏంటంటే అయ్యా మేము పండిస్తాం, మా ధాన్యం కొనండి కేంద్రాన్ని ఒత్తుకున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దండం పెట్టాం. మా రైతులు పండించేటువంటి ప్రతి కింద మేము కొంటాం, బియ్యం తయారు చేసి మీకు ఇస్తాం, మీరు గోడౌన్ నింపుకోండి అంటే మాకు అక్కర్లేదు, రారేసి కొంటాం, వాయిలేసి కొనం అని ముందు వాళ్ళకి అడ్డం పెట్టారు. అడ్డం పెట్టడం వల్ల సరుకు తక్కువైపోయి ఇలా గోడౌన్లు కాలేని. ఈ విధంగా తెలంగాణలో మనం పండించిన పంట ఎంత అంటే నంబర్ 1 దేశంలో పండించే రైతు ఎక్కున్నారని తెలంగాణ ఉన్నారు.
बोधन शहर के सब रजिस्ट्रार दफ्तर का रुकन असम्बली शेख आमिर ने इफ्तिताम मिलाया। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने शहर का दौरा करते हुए सब रजिस्ट्रार दफ्तर का इफ्तिताम मिलाते हुए कहा कि दूर दराज मुकामात से रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अवाम को तमाम तरह की बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए अवाम को साफ और शिफाफ पीने के पानी की फराहमी अमल में लाकर किसी भी किस्म की दिक्कत ना पहुँचाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। మళ్ళీ పాత అల్మారీలు ఎందుకు పెట్టిండ్రే? ఇంత మంచి బిల్డింగ్ చేసుకొని అంత కచరా తీసుకొచ్చి పెట్టి వీళ్ళకు చెప్తే వీళ్ళు ఇప్పిస్తారు కదా మీ వాళ్ళు। अरे डोनेट कराओ ना भाई, तुम्हारे रियल एस्टेट वालों से थोड़ी अलमारी नए डोनेट कराओ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शाहरोजा मुनक़िद होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती तक़ारिब के पेश नज़र पहले मरहले के तौर पर बालकुंडा के मुकाम पर मुनक़िदा तेलंगाना कौमी यकजहती रैली का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शाहरोजा मुनक़िद होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती तक़ारिब के मद्देनज़र पहले मरहले के तौर पर बालकुंडा में मुनक़िदा तेलंगाना कौमी यकजहती रैली में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने शिरकत की और तेलंगाना कौमी यकजहती रैली में शिरकत करने वाले हर एक को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सियासी जलसे और आज का जलसा आम में बहुत फ़र्क है, फिर भी हम सब एक होने का इजहार करते हुए रैली में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर टीआरएस हुकूमत से होने वाली मोहब्बत व लगाव जाहिर करने का इजहार किया। వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఇవన్నీ? ఈ పువ్వు గుర్తు ఆయన 18 రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు పువ్వు గుర్తు ముఖ్యమంత్రులు। ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇక్కడ ఒక్కడు ఉన్నట్టు ఆ 18 రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పనులన్నీ అక్కడ ఎందుకు జరుగుతలేవు? వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర ఎందుకు అయితలేవు? వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు? ఇప్పుడు మాత్రం చేసిన వాళ్ళ కాళ్ళ కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేసి మనందరికి అబద్ధాలు చెప్పి సోషల్ మీడియాలో తిప్పి పిల్లల్ని ఎగదోసి మన చిన్న పిల్లల్ని ఎగదోస్తాను మతం పేరు మీద దేవుడు పేరు మీద వాళ్ళని ఎగదోసి ఇవాళ కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కాబట్టి దయచేసి ఆలోచన చేయాలి। నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నా, ఇవాళ జై శ్రీరామ్ అని ఎవరైతే ఎగదోస్తున్నారో, ఎవరైతే మతం పేరు మీద ఈ దేశాన్ని జాతిని విడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి నిజంగా రాముడి మీద అంతనే భక్తి ఉంటే నిజంగానే तेलंगाना में बदकमा फेस्टिवल के लिए 1.18 करोड़ साड़ियों की तकसीम का मंसूबा 340 करोड़ के अखराजात डिज़ाइन और मियार पर तवज्जो देने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। हुकूमत ने हर साल की तरह इस साल भी बदकमा फेस्टिवल के मौके पर रियासत भर में 1.18 करोड़ बदकमा साड़ियों की तकसीम का फैसला किया है। हुकूमत ने 30 मुख्तलिफ रंगों और 800 रंगों की आमेज़श के साथ 240 डिज़ाइन में साड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया है। जारी साल साड़ियों की तकसीम को वसी पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। सिलसिला पोचमपल्ली और गदवाल के अलावा दीगर इलाकों के बाफिंदों को हुकूमत ने 340 करोड़ रुपए मालियती साड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया है। बाफिंदों से कहा गया है कि वो मुकर्ररा वक्त पर साड़ियों की तैयारी को यकीनी बनाए। जारी साल बदकमा साड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और जरी के काम के साथ रहेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से हर साल बदकमा फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने तकसीम की जाने वाली साड़ियों के मियार और डिज़ाइन पर तवज्जो देने की हिदायत दी है। महकमे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स ने साड़ियों की तकसीम के शेड्यूल को खतियत दी है। अनक़रीब हुकूमत की मंजूरी से तकसीम के प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। बदकमा फेस्टिवल तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स और शनाख्त की अलामत बन चुका है। बदकमा साड़ियों की तैयारी के नतीजे में तेलंगाना के बाफिंदों के माशी इस्तेहकाम में मदद मिली है। ये साड़ियाँ बदकमा के अलावा क्रिसमस के मौके पर, ईसाई और रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्लिम ख़वातीन में तकसीम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और रुकन कौंसिल कविता ने बदकमा फेस्टिवल के रियासत की सतह पर इनेक़ाद में अहम रोल अदा किया है। तेलंगाना जागृति के जरिए अलहदा रियासत की तहरीक के दौरान बदकमा फेस्टिवल मनाया जाता रहा। बताया जाता है कि जारी साल ऑस्ट्रेलिया में बदकमा फेस्टिवल में शिरकत के लिए कविता को मदऊ किया गया। सदाशिव नगर मंडल के डग्गी गांव के मज़ाफ़ात में पेश आया सड़क हादसे में 3 की मौत। सड़क हादसे में 3 की मौत का वाक़या सदाशिव नगर मंडल के डग्गी गांव के मज़ाफ़ात में पेश आया। कल रात तकरीबन 10 बजे कामारेड्डी रेंज डग्गी और क्लोराल जंगल में नेशनल हाईवे 44 पर सड़क उबूर करने के दौरान एक 2 साला 3 का बच्चा नामालूम गाड़ी की जद में आकर फौत हो गया। कामारेड्डी महकमे जंगलात के रेंज ऑफिसर रमेश ने बताया कि कामारेड्डी महकमे जंगलात के अफसरान इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए, वाक़े की तफसीलात जमा की, पंचनामा किया और शेर के बच्चे को
को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी महकमे जंगलात के दफ्तर में मुंतकिल किया। कामारेड्डी महकमे जंगलात के रेंज ऑफिसर रमेश ने बताया। इस मौके पर रमेश, कामारेड्डी रेंज ऑफिसर, महकमे जंगलात व दीगर मौजूद थे। సుమారు 10 గంటల ప్రాంతంలో మంచిప రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కల్వరాల్ బీట్ అండ్ సెక్షన్ పరిధిలో కామారెడ్డి రేంజ్ పరిధిలో చిరుతపులి యాక్సిడెంట్ అయిన సమాచారం వచ్చింది. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం మేము నేషనల్ హైవే టీం వాళ్ళు మేము వెళ్ళాము. చూసేసరికి అక్కడ పడి ఉన్నది. దానికి సంబంధించింది డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని పంచనామా వేసేసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. చిరుతపులి వయసు సుమారు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల మధ్యన ఉంది. एक महीने में 2 मरतबा कौमी परचम लहराने का मौका फ्राहम करते हुए तमाम अवाम को मुत्तहिद करने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का जिले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मी शहर में मुनाकिद होने वाले तेलंगाना कौमी एकजहती प्रोग्राम से जिले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 1 महीने में 2 मरतबा कौमी परचम लहराने का मौका फ्राहम करते हुए तमाम अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार करते हुए बताया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाली कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बायस तेलंगाना दीगर मुल्कों के लिए रोल मॉडल बनने का इजहार किया। జాతీయ జెండాకు వందనం చేసుకోవాల్సిన మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మొన్ననే జాతీయ పండుగ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఈ రోజు జాతీయ సమైక్య వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా మరొక్కసారి చరిత్ర గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో పండుగలు జరిగితే విద్వేషాలు విభజనలు చేసే విధంగా ఉండకూడదు. పండుగలు చేసుకుంటే సమైక్యంగా కలిసి విధంగా ఉండాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా జూన్ 2వ తారీఖు ఇవాళ మనకు తెలంగాణకు స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు. అంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు జూన్ 2వ తారీఖు దసరా పండుగ అయితే సెప్టెంబర్ 17 సంక్రాంతి పండుగ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तमाम अवाम को मुत्तहिद रखने के मकसद के तहत ही तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना कौमी एकजहती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन का खिताब। जिले कामारेड्डी के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा तेलंगाना कौमी एकजहती रैली में गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को बिला किसी रुकावट के तरक्याती फलाह स्कीमात से फैज़याब करने के बायस रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन निज़ामाबाद सेशन कोर्ट में आज पी लक्ष्मी नरसैया ने अपने ओहदे का लिया जायजा व पुलिस कमिश्नर के नागराजू से की मुलाकात। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिले निज़ामाबाद सेशन कोर्ट में आज पी लक्ष्मी नरसैया ने अपने ओहदे का जायजा लिया, जिस पर वकला व पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर CP के नागराजू से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि क़ब्ल में इन्होंने अपनी खिदमात करीमनगर में अंजाम दी थी। इस मौके पर APP रहीमुद्दीन बोधन, PP रानी, शिवराम अशोक व दीगर ने मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब के पेश नज़र डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर मुनक़्क़िद होने वाले कौमी एकजहती रैली का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब के पेश नज़र डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर मुनक़्क़िद होने वाले कौमी एकजहती रैली का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाने रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली भारी रैली का FCI गोदाम से होते हुए ग्राउंड तक इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुत्तहिद करने के मकसद के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के जरिए फैज़याब किया जा रहा है। तो मरकज़ में मौजूदा हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से बौखलाहट का शिकार होकर अवाम में इंतशार पैदा करते हुए फूट डालने की कोशिश करने से बाज न आने की सूरत में अवाम सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। రైతులు మా సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు మా అక్కలు చెల్లెళ్ళు
ప్రతి ఒక్కరికి మా స్పెషల్లీ మా పత్రికా ప్రతినిధులు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా. జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై కేసీఆర్. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। तेलंगाना इत्तेहाद के 75 बरसों के जश्न का बांका में शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में रैली और जलसे आम का इनेकाद। मुझे कोई ईडी नोटिस नहीं आई, दिल्ली के चंद कायदीन मीडिया को कर रहे गुमराह। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता का सहाफती बयान। हमेशा मुत्तहिद रहे और हमेशा कौम को मुतहरिक करे। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी। केसीआर की क़यादत में ही मुल्क की तरक्की मुमकिन। तेलंगाना इत्तेहाद जश्न के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। जदीद सेक्रेटेरिएट को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने पर रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। अवाम को मजहब के नाम पर मुंतशिर करना बीजेपी का काम और अवाम को मुत्तहिद करना केसीआर का स्टाइल। तेलंगाना इत्तेहाद के 75 साला जश्न के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर मिले जीवन रेड्डी का खिताब। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में तेलंगाना इत्तेहाद जश्न का जोश व खरोश के साथ इनेकाद और रैली का अवाम की कसीर तादाद के साथ इनेकाद। अवाम गफलत से जागे और अपने वोट के हक की हिफाजत करें। अपने आधार को वोटर ID से लिंक करें। जमीयत उलमा ज़िले सदर हाफिज अली खान की जानिब से 18 सितंबर को शोर बेदारी इजलास का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।